جیسے بعض علاقوں کے اندر وہ خطرات سامنے بھی آ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی شہریت سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے رکھنا چاہیے اور پوری توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں اور غفلت و لاپرواہی کا شکار ہیں، وہ اپنے سے کچھ کر نہیں سکیں گے، اور یہ سمجھنا کہ اس سے صرف ووٹ کے حق سے محروم کیے جائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مستقبل کے ان کے منصوبے اس ایک بنیاد کو لے کر کے بہت سارے ہیں۔ جب شہریت ختم ہو جائے گی تو آپ کو ملک میں نہیں رہنا، آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو ہیں کیوں؟ اس لیے اس کو بہت اہمیت دے کر اپنی ملازمت کو، اپنی تجارت کو، کاروبار کو 2-4 دن کی رخصت ڈال کر، چھٹی ڈال کر، اس میں دوڑ دھوپ کر کے، مشقت اٹھا کر اس کام کو انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ریاست کرناٹک میں 30 جون سے SIR، علماء کرام کی مؤدبانہ اپیل، درد مندانہ اپیل، مسلمان ہوشیار بیدار چوکن نہ رہیں، SIR کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں، لاپرواہی نہ برتیں، ورنہ شہریت خطرے میں رہ جائے گی، سٹیزن شپ خطرے میں پڑ جائے گی۔ 30 جون سے الیکشن کمیشن کی جانب سے BLO گھر گھر آئیں گے، دستاویزات تیار رکھیں۔ الیکشن کمیشن نے 11 دستاویزات کو SIR کے لیے قابل قبول مانا ہے۔ ہر فرد کا نام SIR میں شامل ہو، الیکشن فہرست میں شامل ہو، درست طریقے سے درج ہو۔ اس کے لیے گھر والے، محلے والے اور مساجد کمیٹیاں فکر کریں۔ ہر مسجد میں SIR کے لیے ہیلپ ڈیسک بنایا جائے۔ ہر مسجد میں SIR کے سلسلے میں بیداری اور معلوماتی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ اس طرح ریاست کرناٹک کے اہم علماء کرام نے SIR کے سلسلے میں چند اہم گزارشات کی ہیں۔ بنگلور میں آج بتاریخ 15 جون بروز پیر علماء کرام کی اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ مولانا مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی، مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا مفتی محمد اسلم رشادی، مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی، مولانا عبدالقادر شاہ واجد، مولانا سید عاصم عبداللہ، مولانا سید شبیر احمد ندوی نے میڈیا سے خطاب کیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے چلائے جا رہے اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے سلسلے میں عوام الناس سے خصوصی اپیل کی ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کے سامنے یہ بات ہے، پورے ملک میں اس وقت پر SIR کے نام سے ایک مہم چل رہی ہے۔ بعض صوبوں میں یہ کام مکمل ہو گیا، ہمارے صوبے میں انشاءاللہ اسی مہینے کی آخری تاریخ سے یہ عمل شروع ہوگا۔ SIR دراصل اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ الیکٹورل لسٹ میں ناموں کی شفافیت ہو، نام مقرر نہ ہوں، جو انتقال کر گئے ہیں ان کے نام ڈیلیٹ ہوں، اور آنے والے دنوں میں انتخابات صاف ستھرے انداز میں منعقد کیے جا سکیں، یہ اصل مقصد ہے۔ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 2002 میں آخری SIR کرایا تھا، اس کے بعد یہ 2026 میں ہمارے یہاں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر ووٹر اپنا نام صحیح درج کرے، جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے اس کا نام درج ہو، جو پہلے سے جن کے نام ووٹر لسٹ میں موجود ہیں ان کے نام باقی رکھے جائیں۔ اس کے لیے حکومت نے ECI نے کچھ ڈاکومنٹس 11 ڈاکومنٹس طلب کیے ہیں، ان میں سے 2 ایسے ڈاکومنٹ ہوں جس میں ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ثابت ہو اور یعنی ڈیٹ آف برتھ ثابت ہو، اسی طرح ہمارا پروف آف ایڈریس ہو۔ ان 11 میں سے ایسے 2 ڈاکومنٹ کا سبمٹ کرنا یا اس کو اپنے پاس تیار رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت نے، الیکشن کمیشن نے ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ یہ کہ 1 جولائی 1987 سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو صرف اپنا سیلف میپنگ کرنا ہوگا، پھر اپنا سیلف ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا۔ پیش کرنے کا مطلب ان کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، تیار کر لینا ہوگا۔ جن کی پیدائش
1 जुलाई 2027 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई है, उनको अपने दस्तावेज़ के साथ अपने वालिदैन में से किसी एक का दस्तावेज़ भी साथ रखना होगा, तैयार रखना होगा। और जिनकी उम्रें 2 दिसंबर 2004 के बाद से हुई हैं और उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उनको अपना नाम दर्ज करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने वालिदैन दोनों का दस्तावेज़ पेश करना होगा। इसको बहुत एहतमाम से इस काम अमल को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज़ात जो मांगे हैं उसकी फहरिस्त अक्सर जगहों पर मौजूद है। बहुत सारे NGOs वगैरह इस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी इस वक्त पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये कोशिश है और पूरे सूबे कर्नाटक के तमाम शहरियों को, बिलखुसूस मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं, मसाजिद के ज़रिए, मसाजिद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, NGOs के ज़रिए, तमाम मसलक के ज़िम्मेदार हजरात के ज़रिए, वो ये कि हर घर तक पहुँचने की कोशिश की जाए और हर घर के हर फर्द तक मुलाकात की जाए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सूबे कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला में ये काम शुरू हुआ है, अच्छे पैमाने पर काम हो रहा है। हमारे उलमा कराम की ये राय है और ये अपील करते हैं कि हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के और अपने महल्ले के सतह पर एक SIR अवेयरनेस बेदारी मुहिम का एक प्रोग्राम करें, जिसमें तमाम लोगों को जमा करके उनके सामने ये सारी तफसीलात पेश करें जो अब आपके सामने पेश की गई हैं। जो प्रेस रिलीज़ है ये तो मुख्तसर है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शामिल करना चाहिए। इसी तरह हर मस्जिद वाले अपने मस्जिद के अतराफ अपने मस्जिद से 4-5 ऐसे नौजवानों को मुंतखब करे जो इस काम को घरों तक पहुंचकर उनको तक वो बात पहुंचाने वाले और उनके डॉक्यूमेंट्स को बनाकर देने वाले हों। ऐसे कुछ इसमें महारत रखने वाले हजरात की ज़रूरत पड़ती है, तो इंशाअल्लाह ये सब मिल भी जाएंगे और वॉलंटरी तौर पर काम करने के लिए हमारे बहुत सारे नौजवान तैयार भी हो जाएंगे। हमारी मसाजिद के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि इस काम को भी करने की कोशिश करें। इसी तरह मस्तूरात में भी एक मुहिम चलाई जाए, बेदारी मुहिम चलाई जाए कि किसी भी खातून का नाम जो पहले से है वो डिलीट ना हो और जो बच्ची 18 साल की हो चुकी है उनका नाम दर्ज हो। इस सिलसिले में भी औरतों के अंदर प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, वरना आम तौर से इस सिलसिले में कोताही होती है, कमी होती है, जिसका नुकसान आगे दिनों के अंदर भुगतना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते भी हैं और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान भी होता रहता है कि जो SIR के अंदर जिनका नाम आ गया, जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वही आइंदा चलकर वोट देने के मुस्तहिक भी रहेंगे और वही उन्हीं को हुकूमत की जो स्कीम्स हैं जिसमें बेनिफिट और मुराआत मिलती हैं उससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। ये तो खैर दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात ये है कि हमारी शहरियत खुदा न खास्ता अगर हमने इसमें SIR में हमारी इस काम में SIR के इस अमल में हिस्सा नहीं लिया और कोताही और लापरवाही बरती हमने, तो हमारी शहरियत ही ख़तरे में पड़ सकती है। बहुत बड़े नुकसान की बात है। इसलिए हज़रात उलमा कराम ने ये सोचा कि पूरी संजीदगी के साथ और पूरे एक सीरियसनेस के साथ पूरे सूबे के हर घर के हर फर्द तक बात पहुंचाने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हजरात के माध्यम से और आपके प्लेटफॉर्म से की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त पहुँचे हैं और हजरात उलमा इकराम इंशाअल्लाह अपनी बात भी रखेंगे। उसके लिए जो BLOs हमारे घरों को आएंगे वो सिलसिला 30 जून से शुरू होगा, 1 महीने तक तकरीबन ये सिलसिला चलेगा। हम सब की ये दरख्वास्त है हमारे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से कि BLO के आने का इंतज़ार न करें, उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और बल्कि हो सके तो एनुमरेशन फॉर्म जो BLO लेकर आते हैं वो 2 फॉर्म लेकर आते हैं। हमारे नामों का प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म लेके आते हैं जिसमें हमारी फ़ोटो भी चिपकी हुई होती है, हमारा नाम भी होता है, हमारा पार्ट नंबर, सीरियल नंबर भी उस पर हुआ होता है। तो उनके आने से पहले हम इस तरह का एक फॉर्म डाउनलोड करके उस पर लिखें और लिखना कन्नड़ ज़ुबान में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि BLO जो लिखता है वो कन्नड़ ज़ुबान में लिखता है। तो हमारी गुजारिश तमाम मुसलमानों से यह है कि कन्नड़ ज़ुबान में लिखने की पहले से तैयारी करके रख लें। अपने पास 1-2 फ़ोटो कलर फ़ोटो भी अपने साथ रखें ताकि उस नए फॉर्म पर उसको चिपकाया जा सके।
और ये जो काम होता है हमारा पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 2002 में जो था वो और इस वक्त 2026 में है, इन दोनों को जोड़ना, इसी को मैपिंग कहते हैं। इसमें बड़ी गलतफहमी लोगों को ये होती है कि बहुत सारे लोगों ने मैपिंग का काम बहुत पहले कर लिया है, 2 महीने, 2.5 महीने, 1 महीना पहले भी कर लिया है, और ये इत्मीनान से बैठे हैं कि हमारा काम हो गया है, मैपिंग हो गई तो समझ रहे कि हमारा SIR हो गया है। मैपिंग एक पहला मरहला है, उसको आखिर तक पहुंचाने के लिए BLO वो अपने ऐप लेकर आएगा, वो ऐप में हमारा पूरा फॉर्म फिलअप करेगा, हमारे डिटेल्स लेगा, और वो जब अपलोड करेगा उसके बाद जो लिस्ट निकलेगी उस मरहले तक हमें पूरी फिक्रमंदी के साथ लगे रहना है। ये काम SIR का आखिरी मरहले तक जो होता है उसमें पूरे तवज्जो के साथ, पूरी फिक्रमंदी के साथ करना है। अल्लाह करे कि ये जो मुहिम चल रही है, मुहिम कामयाब हो। आपकी क्या गुजारिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने जो तफसीलात आई हैं और दीगर हजरात के ज़रिए भी आप हजरात तक SIR से मुतल्लिक़ तफसीलात पहुँची हैं, उसको सामने रखते हुए अंदाज़ा होता है कि इस वक्त ये काम कितना अहम और कितना ज़रूरी है। जब इस कदर अहम और ज़रूरी है और हमारी शहरियत से इसका ताल्लुक़ है, तो इसके लिए हम सबको जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। इसके अंदर मसाजिद के ज़िम्मेदारों का भी बड़ा रोल हो सकता है और बाज़ जगह पर यह मुहिम चल भी रही है। इसी तरह जो समाजी कारकुन है उनकी तरफ से भी एक तो ख़ुद ज़ाती तौर पर हमें मुतवज्जे रहना है, अपने घर के अफराद और मुतल्लिक़ीन, दोस्त अहबाब जो भी है उनको इसकी तरफ मुतवज्जे करना है और कराना है, और जो अपना मैपिंग करना है और फिर उसके बाद के जो मराहिल हैं उन मराहिल के सिलसिले में पूरी जो है तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ हमारी गुजारिश इस प्लेटफार्म से ये है कि मसाजिद के ज़िम्मेदारान ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो दें। हर महल्ले की मस्जिद के अंदर इसका एक सेंटर कायम हो और वहाँ पर लोगों को इसकी दावत दी जाए और उनका जो काम है उसको तैयार करने की कोशिश की जाए। इसी तरह जो अफराद महल्ले में आसपास में रहते हैं और समाजी काम भी करते हैं माशाअल्लाह, और समाजी तहरीकात हैं, इन सब को भी इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। तो एक तरफ ख़ुद अपने तौर से काम और दूसरी तरफ मसाजिद और ज़िम्मेदारान और इसी तरह समाजी कारकुन, ये सब लोग मिल मिलाकर ये काम करेंगे तो ये काम आला पैमाने पर होगा। और जो ख़तरात इस वक्त में दरपेश हैं, जैसे बाज़ इलाक़ों के अंदर वो ख़तरात सामने भी आ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों की शहरियत से उनको महरूम कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होना चाहिए। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना चाहिए और पूरी तवज्जो इस तरफ देने की ज़रूरत है, और अपने भी और अपने मुतल्लिक़ीन के सिलसिले में भी पूरी जो है कोशिश होनी चाहिए। अभी मौलाना ने आपके सामने जो तफसीलात बयान की हैं, किस उम्र और किस सन के लोगों के लिए क्या क्या कवानीन है, उसको ख़ास तौर पर सामने रखकर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम इस प्लेटफार्म से कर्नाटक के तमाम शहरियान को भी और ख़ास तौर पर मुसलमानों को और ज़िम्मेदारान मसाजिद को और जो है समाजी कारकुनान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस सिलसिले में पूरी तवज्जो बरती जाए और जो भी काम इस सिलसिले में करना है वो सब काम करके डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए लोगों को मुतवज्जे किया जाए, किस में क्या कमी है और वो कमी कैसे पूरी हो सकती है और किन ज़रियों से पूरी हो सकती है, कहाँ जाकर उनको क्या काम करना चाहिए। आम तौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारे अवाम को मालूम नहीं होता कि काम कैसा करना चाहिए और कहाँ जाकर करना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए। ज़रा सी इसकी रहबरी की ज़रूरत है। तो जो लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं वो तमाम जगहों पर इस सिलसिले में जा कर काम करें। यह हमारा एक पैगाम है जो इससे दिया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरहले को आसानी के साथ और आफियत के साथ में पूरा फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस मीट में हमारे दो अकाबिरीन ने
اس سے متعلق گفتگو کی ہے اس کو دہرائے بغیر ایک نقطہ یہ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے جو SIR کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے باشندوں کی شہریت کو مضبوط کیا جائے۔ موجودہ حکومت SIR جو کر رہی ہے اس کا مقصد مائنارٹیز کو بالخصوص ایک خاص کمیونٹی کی شہریت کو ختم کرنا، لہذا وہاں مثبت سوچ تھی، یہاں منفی سوچ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ایک تعلیم کی کمی ہے، دوسرا وقت کی قربانی دے کر تھوڑی مشقت برداشت کر کے اپنے کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں بیداری بہت کم ہے، غفلت و لاپرواہی بہت۔ کام NRC CAA کے موقع سے دستاویز کی درستگی کی بات چلائی جا رہی ہے، لیکن اب بھی دستاویزات میں کمی ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ مساجد کے ذمہ دار اپنے محلوں کے کالج یا ڈگری پڑھنے والے طلباء کو ہائر کریں، ان کو جیب خرچ دیں، 24 گھنٹے آپ ان کو بلا کے بٹھا لیں گے، کام لیں گے اور جیب خرچ بھی نہیں دیں گے تو کام جو ہے قاعدے سے سلیقے سے نہیں ہو سکے گا۔ بہتر ہے کہ ان کا جیب خرچ دیا جائے اور ان سے کام لیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے دائرے میں بسنے والے، ہر مسجد اپنے دائرے میں رہنے والے ساتھیوں کی، مسلمانوں کی دستاویز کی اور SIR کی فکر کر لیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں اور غفلت و لاپرواہی کا شکار ہیں، وہ اپنے سے کچھ کر نہیں سکیں گے، اور یہ سمجھنا کہ اس سے صرف ووٹ کے حق سے محروم کیے جائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مستقبل کے ان کے منصوبے اس ایک بنیاد کو لے کر کے بہت سارے ہیں۔ جب شہریت ختم ہو جائے گی تو آپ کو ملک میں نہیں رہنا، آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو ہیں کیوں؟ اس لیے اس کو بہت اہمیت دے کر اپنی ملازمت کو، اپنی تجارت کو، کاروبار کو 2-4 دن کی رخصت ڈال کر، چھٹی ڈال کر، اس میں دوڑ دھوپ کر کے، مشقت اٹھا کر اس کام کو انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ریاستی حکومت سے کوئی گزارش ہے؟ ریاستی حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور ہمارے سامنے تو کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہمیں حکومت یا اپنے نمائندوں پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اس کو طوفانی انداز میں اپنے طور پر اپنے کام کو لے کر کے میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارا کام نہیں کرے گا، ہمارا کام خود ہمیں کرنا ہے۔ تو رہبری کے لیے اور رہنمائی کے لیے کوئی مرکز بنگلور میں علماء کا؟ ہم تو گزارش کر رہے ہیں ہر مسجد کو مرکز بنایا جائے، اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ کسی محلے میں، علاقے میں اگر ایسی نشست رکھی جائے اور ہمیں یاد کیا جائے کہ بھی ہمیں وہاں آ کے کچھ بات کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مستقل ہیلپ لائن سینٹر یا جب تک مساجد کی کمیٹیاں نہیں کھڑی ہوں گی، بہت بڑا علاقہ ہے نا، ایک مسجد کے دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے میں ان کو کام کرنا آسان ہے۔ اب محلے میں پڑھے لکھے بچے مل جائیں گے، ان کو لے کر کے ایک سینٹر کی طرح بنا کر نگرانی کر کے صبح سے لے کر کے رات تک کام کرایا جائے تو بہت کام ہو۔ موقع پر SIR کے سلسلے میں خاص طور سے ہمارے خواتین سے ہم درخواست کرتے ہیں، اگر کوئی گھر میں مرد نہ ہو اور BLO آفیسر ویسے موقع پر آ جائے تو اس آنے والے BLO آفیسر کو آپ واپس نہ بھیجیں، بلکہ پردے کے ساتھ، اگر پردہ نشین خواتین ہیں پردے کے ساتھ ان سے بات کریں، اور ہماری جو بچیاں کالج میں اسکول میں پڑھی ہوئی ہیں ان بچوں کے ذریعے سے انیمریشن فارم جو فل کرانا ہے وہ کام کریں۔ واپس آ کر بھیج دینا مرد نہیں ہے بول کر یہ بہت نقصان کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے ہماری خواتین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اگر مرد بھی نہ ہو تو ان کو آنے والوں کو ان کا اکرام کر کے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔
दूसरी बात, कन्नड़ ज़बान में जैसे बात मुफ्ती साहब ने कहा कि स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या कन्नड़ में लिखें, लेकिन अगर स्पेलिंग का मसला आ जाएगा तो वो भी मसला आइंदा जैसे दूसरे सूबों में हुआ है, इस तरह का मसला यहाँ भी हो सकता है। ख़ास लिखने वाले लोग जो है कन्नड़ ज़बान को भी सही लिखें और अंग्रेज़ी ज़बान को भी सही लिखें, इसका ख़ास ख्याल रखें। हमारे बड़ों ने, उलमा ने जो अहम और बुनियादी बातें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बता दी। मज़ीद किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जैसे अभी एक सवाल ये भी आया था कि हुकूमत से क्या मदद तलब की जाए, तो हमारे पास जो दूसरे सूबों की कारगुजारियाँ आई, जहाँ जहाँ एफआईआर हुआ है, अक्सर जगह पर डिलीशन हुआ है, नाम जो है वो जी डिलीट किए गए हैं। लेकिन केरला की कारगुजारी हमारे पास आई कि केरला में डिलीशन की जगह पर एडिशन हुआ है, तकरीबन 3 लाख नाम वहाँ मज़ीद शामिल किए गए। और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, उन सब ने एकजुट होकर, एक साथ होकर जब लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया तो बजाय नुकसान होने के नफ़ा हुआ। तो अगर हमारी यहाँ की जो हुकूमत है वो हुकूमत भी पूरे तरीके से साथ दे, और एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ हमारे साथियों ने इशारा भी दिया और बताया भी कि चूँकि हमारी यहाँ की सरकारी ज़ुबान कन्नड़ा है और नाम कन्नड़ में लिखे जाते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है, तो नामों में बड़ा फ़र्क रह जाता है। तो इस वजह से हुकूमत अगर इस तरह का इंतज़ाम कर दे कि नाम इंग्लिश ही में लिखे जाएं और उसको इंग्लिश ही में महफूज किया जाए, सेव किया जाए, और उसी तरह से उसको जो है दिखाया जाए, तो और उसका ट्रांसलेशन कन्नड़ में करने के बजाय उसको इंग्लिश ही में अगर बरकरार रखा जाए, तो बाद में चलकर जो स्पेलिंग्स की गलतियाँ और दूसरी गलतियाँ होकर जो परेशानियाँ हो रही हैं, उन परेशानियों से ख़ास तौर से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जमातों ने, उलमा ने और दीगर जमातों ने, सब ने मिलकर इस अहम जिम्मेदारी को समझा है और इसको पूरा करने की कोशिश की है। मैं भी अपने तमाम दीगर साथियों के जैसा गुजारिश करता हूँ कि हर मस्जिद के नौजवान, मसाजिद की कमेटियाँ इस जिम्मेदारी को जी कबूल करें और उसको पूरा करने की फ़िक्र करें। जज़ाकुमुल्लाह। कमेटी के अलावा वकला जो हैं वो इस सिलसिले में काफ़ी मालूमात रखते हैं, उन्हें भी आगे आने की ज़रूरत है। एडवोकेट्स हमारे हर तबके को आने की ज़रूरत है, पढ़े लिखे हर तबका जी माशाल्लाह। आईटी के जितने नौजवान हैं वो बहुत खूब इस्तेमाल हो रहे हैं और वो बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत साथ दे रहे हैं। ऐसे मुसलमान जितनी जमातें हैं, दानिश्वरान हैं, जिन जिन के पास जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें उम्मत के लिए लगाएं, खपाएं। ये एक अच्छा मौका है कि अपने आप को मनवाने का, अपनी सलाहियतों को उम्मत के लिए पेश करने का। अगर हर तबका आगे बढ़ के आएगा तो अल्लाह ताला कल उनको जज़ाए खैर भी देंगे और पूरी उम्मत उनको दुआएं भी देंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। उन बातों का तकरार किए बगैर सिर्फ मुझे ये अर्ज़ करना है कि हमारे इस मुल्क में 8 मरतबा एसआईआर हो चुका है। आखिरी मरतबा 2002 में एसआईआर का अमल हुआ था। इस वक्त हम में से हर एक 2002 की लिस्ट में अपने नामों को तलाश कर रहा है। अपना नाम मिल रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, अपना नाम नहीं मिल रहा है तो अपने बड़ों के नामों को तलाश कर रहे हैं। हो सकता है आज से 20-25 साल बाद फिर एसआईआर हो और जो नेक्स्ट जनरेशन हमारा आने वाला है वो 2026 की लिस्ट में अपने नामों को या अपने बड़ों के नामों को तलाश करें। अगर उस वक्त हमारे नाम नहीं होंगे एसआईआर की लिस्ट में 2026 की, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे लिए बहुत बुरा भला कहेगा, कोसेगा कि भी हमारे बड़े कैसे थे कि वो तो चले गए लेकिन हम ही मुश्किल में डाल कर गए। इसलिए गुजारिश ये है कि इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस अमल को पूरा किया जाए। बार बार ये बात आ रही है कि मसाजिद में हेल्पलाइन सेंटर कायम करके अपने जो साथी हैं उनके एसआईआर का जो अमल है उसमें ताउन करें, मदद करें और उनके एसआईआर के फॉर्म को फिल करने में
पूरी मुआवनत करें। हमारी गुजारिश ये है कि हमारे दरमियान बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, बिरादरान वतन रहते हैं, जहां हम अपने भाइयों की फिक्र कर रहे हैं उनका भी ताउन करें, अगर ज़रूरत पड़े तो उनका भी ताउन करें, उससे एक अच्छा माहौल कायम होगा। हमने तमिलनाडु में देखा जहां मसाजिद में मुसलमान आकर अपना SIR फॉर्म भर्ती करके ले जा रहे थे, वहीं गैर मुस्लिम भी बहुत सारे आए और जो फ़िरका परस्त ताकतों के हमनवा थे वो भी आए और मसाजिद से अपना फॉर्म वगैरह फिल करा के ले गए हैं और उससे एक अच्छा माहौल कायम हुआ है। ये वक्त है कि हम दूसरों की मदद करने का एक हमारे लिए बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया है। सबसे पहले अपना और फिर उसके बाद अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपने महल्ले वालों का, इस तरह जो है तरतीब के साथ अगर काम हो जाए तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से SIR के सिलसिले में मीटिंग चल रही है। हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमाया है और जितने भी तजावीज़ सामने आए हैं बहुत उम्दा और बहुत अच्छे हैं। अगर उनके तजावीज़ पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो वबा SIR की फैली हुई है जिससे लोग बहुत ही परेशान हैं, उस परेशानियों से हम नजात हासिल कर सकते हैं। बस मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि उलमाए किराम के तजावीज़ पर अमल करें और उनके बताए हुए तरीक़े पर चलें इंशाअल्लाह।